یوم تکریم شہدائے پاکستان، وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان پر ملک بھر میں تقریبات۔ جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ریٹائرڈ ندیم رضا کی شہداء کو سلامی۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی جی اینٹی نارکوٹکس اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ شہداء کے اہل خانہ، طلبہ، اساتذہ سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ مفتی منیب، بابر اعظم اور محمد رضوان بھی شریک ہوئے۔ 92 نیوز کا بھی عرض پاکستان کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام۔ جن لوگوں نے یہ انتہائی شرمناک کام سر انجام دیا، ان میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور دشمنان پاکستان میں کوئی فرق نہیں۔ قانون اور آئین کے مطابق ان کو ضرور سزا ملے گی۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور کے دورے پر خطاب اور گفتگو۔ بولے یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا کروڑوں لوگوں کے جذبات سے کھیلے۔ 9 مئی کے شرپسندوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں۔ شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں گے۔ ریڈیو پاکستان پشاور میں تاریخی اور 100 سالہ ریکارڈ کو بھی جلا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے نقصان پر بریفنگ لی۔ جلائی گئی گاڑیوں کے مالکان میں نئی گاڑیاں تقسیم۔ ریڈیو پاکستان کو 48 گھنٹے میں فنڈز دینے کا وعدہ۔ ملازموں کو تنخواہیں دینے کی ہدایت کی۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور وقار مجروح کرنے والوں کو قوم معاف کرے گی نہ بھولے گی۔ آرمی چیف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام۔ جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں یوم تکریم شہداء پاکستان پر پولیس آفیسرز اور جوانوں سے خطاب۔ بولے جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ 9 مئی جیسے فعل کو دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامتیں ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف کی شہید سپاہی عمران خان کی بیٹی سے ملاقات۔ بولے پوری قوم کو ان کے بابا پر فخر ہے۔ تمام شہداء ہمارے لیے باعث فخر ہیں، قربانیوں کو فراموش نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف کی یوم تکریم شہداء پر اسکول میں شہداء کے دیگر بچوں سے بھی ملاقات۔ جنرل عاصم منیر نے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ پاک فوج شہداء کے تمام بچوں کی وارث ہے۔ لازوال قربانیوں کی بدولت شہداء کے بچوں سے رشتہ مثالی اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان پر نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تقریبات۔ ایڈمرل امجد نیازی اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ جے ایس ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی فاتحہ خوانی۔ ملتان میں کور کمانڈرز نے یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی کی۔ پشاور میں آئی جی ایف سی نے شہداء کو سلامی دی۔ کراچی میں کمانڈر پاکستان فلیٹ نیوی نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ لاہور میں کور کمانڈر اور سول سوسائٹی کے افراد کی یادگار شہداء پر حاضری۔ کوئٹہ میں بھی یوم تکریم شہداء کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ کی شرکت۔ گوجرانوالہ میں یادگار شہداء پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کی حاضری۔ اے نثار وطن، اے یار وطن، تجھے سلام۔ شہداء پاکستان کی قبروں پر اہل خانہ، عوام اور فوجی افسران کی حاضری۔ میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر، میجر شبیر شریف شہید، کیپٹن سلیمان شہید کی قبروں پر اہل خانہ اور شہریوں کی حاضری۔ کیپٹن عاطف حسن شہید، حوالدار خرم شہید، لانس نائک عبدالحکیم شہید اور میجر طفیل شہید کو بھی خراج عقیدت پیش۔ شہر شہر شہداء کی قبروں پر پروقار تقریبات۔ کمانڈنٹ چمن کی ایف سی کے شہید اہلکار محمد عمر کی قبر پر حاضری۔ ننکانہ صاحب میں پاک فوج کے دستے کی کیپٹن حسنین نواز شہید کے مزار پر سلامی۔ میرپور آزاد کشمیر میں کرنل شہید عمران جلال کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ افواج پاکستان اور شہدائے پاکستان قوم کی شان، جان اور مان۔ فوج اور شہدائے پاکستان سے یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیز۔ کراچی سے خیبر اور گوادر سے کشمیر تک لوگ باہر نکل آئے۔ اسلام آباد میں مزدوروں، لاہور میں سرکاری ملازمین اور شہریوں کی ریلیاں۔ حیدرآباد میں طلبہ و طالبات، استور میں سول سوسائٹی کے اراکین سڑکوں پر نکل آئے۔ اوکاڑا، پنڈی بھٹیاں، عارف والا، پتوں کی، فورٹ عباس، رنالہ خرد میں ریلیز۔ پشاور، ڈی جی خان، سوابی، جتوئی میں بھی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔
संजाबी, डेरा बुगटी और दीगर शहरों में भी तकरीबात और रैली। मुल्क की सलामती हमारे शहदा की गिरां कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं। सदर आरिफ अलवी का यौम तकरीम शहदा के मौके पर पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का भी पैगाम। कहा कि शहदा हमारा फख्र थे, हैं और रहेंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो बोले कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि यौम तकरीम शहदा कौम की इज्तिमाई सोच की तब्दीली का दिन है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हमारा फर्ज है शहदा को याद रखें। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बोले कि कौम शहदाए पाकिस्तान की मीरास के तहफ़्फ़ुज़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत 80 से ज़ायद अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। कासिम सूरी, असद कैसर, मुराद सईद, मलिका बुखारी के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद और असलम इकबाल के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई न करने की इस्तदा। कहा कि 9 और 10 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए अदालत उज़्मा के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आईनी करार दिया जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया है। मरियम नवाज एस्टैब्लिशमेंट से वालिद को ओहदे से हटाए जाने का बदला लेना चाहती हैं। पंजाब इंतखाबात केस में 9 मई के वाकयात का तज़किरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। 9 मई के वाकयात इंतखाबात के लिए कैसे मसाइल पैदा कर रहे हैं, कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। इंतखाबात में ताख़ीर से मनफी कुव्वतें एक्टिव हो जाएंगी। बतौर आइन के मुहाफ़िज़ अदालत कब तक खामोश रहेगी। आर्टिकल 224 को सर्द खाने में कितने अरसे तक रख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा बहुत हो गया, इंतखाबात हर सूरत होंगे। इलेक्शन कमीशन को भी मुतालबा करते हुए कुछ सोचना चाहिए। इंतखाबात में फौज की जरूरत क्या है, एक फौजी भी रोके तो लोग रुक जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाज अल-एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स के मामले पर दायर तमाम 4 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्तों की समाअत सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी लीडर्स और कारकुनों से रब्ता खत्म। कहते हैं कि इंटरनेट बंद करके जूम मीटिंग बंद करा दी। ना लीडर मिल रहा है ना कोई और। ये किस जमहूरियत में होता है। वो तो रोज गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं। सब चले जाएं तब भी टिकट जिसे मिलेगा वो जीतेगा। पार्टी कारकुनों को गिरफ्तारियों से बचने के लिए रूपोश होने का कह दिया। 9 मई के वाकयात को बहाना बनाकर पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान जहनी खराबी का शिकार है। ये उनके अपने गुनाहों और ज्यादतियों के सिवा कुछ नहीं जो उन्हें सताए जा रहा है। ये भी नवाज शरीफ के खिलाफ उनके गलत खेल का एतराफ है। ना वो इंतकाम पर यकीन रखती हैं ना नवाज शरीफ। मजीद कहा शहीदों का लहू किसी फर्द का नहीं कौम का कर्ज होता है। मुल्क का फख्र और मट्टी की अमानत होता है। जो उसकी बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। सियासतदान के भेस में छुपे गद्दारों पर उनकी तनकीद। सियासी रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला जारी। मलिका बुखारी के तहरीक इंसाफ की रुकनीयत और ओहदे छोड़ने का ऐलान। सेनेटर अब्दुल कादिर ने पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पीटीआई गुजरांवाला सिटी के सदर खालिद लून ने पार्टी छोड़ दी। मुल्तान से जावेद अख्तर अंसारी और मलिक अकरम कन्नू पीटीआई को खैरबाद कह गए। पीटीआई छोड़ने वाले डॉक्टर हैदर अली पीपल्स पार्टी में शामिल। अब्दुल्ला वड़ाइश भी परवेज इलाही का साथ छोड़कर काफ लीग में वापस। आयशा गुलालई और इज्जत खान का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी शुजात बोले जिस शख्स में मैं आ जाए नाकामी उसका मुकद्दर है।
लाहौर में पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस की भारी नफरी ने ज़हूर इलाही रोड पर इलाके को घेरे में लिया। घर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। चौधरी परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने लेडीज एहलकारों के हमरा परवेज इलाही और चौधरी वजाहत के घरों की तलाशी ली। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एहलकार भी मौजूद थे। एंटी करप्शन अदालत ने आज परवेज इलाही की जमानत खारिज की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी छोड़ने वालों की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। पीटीआई की रूल ऑफ लिस्ट से कोर कमेटी अरकान के नाम हटा दिए गए। आमिर कयानी, अमीन असलम, श्री मजारी, असद उमर कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ गए। फवाद चौधरी को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। मरकजी और सूबाई क़यादत को पार्टी छोड़ने वालों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई के 10 रहनुमाओं की जमानतें खारिज कर दी। फरूख हबीब, असद कैसर, शिबली फराज, जुल्फी बुखारी, आजम सवाती और मुराद सईद शामिल, आतिफ खान, हस्सान न्याजी, अली नवाज आवान और राजा खुरम की जमानतें भी खारिज। एटीसी लाहौर ने उमर सरफराज सीमा के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहलकार सेनेटर एजाज चौधरी को जेल के अकबी दरवाजे से साथ ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई का हुक्म दिया था। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की भी समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए, पहले दिन बता देते रियासत की पूरी मशीनरी क्यों एक्टिव है, बता देते ये सब कुछ सियासत हो रही है, उनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स किए कि आसद कैसर का भी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला खत्म करें। पाकिस्तान की समंदरी तिजारत में बड़ा इनकलाब। मुल्क की तारीख में पहली बार रूस का तिजारती बहरी जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। सेंट पीटर्सबर्ग की बंदरगाह से दूसरा जहाज 29 मई को कराची पोर्ट पहुंचेगा। इब्तदाई तौर पर महीने में 1 और बाद में माहाना 3 बहरी जहाज बराह रास्त रूस से पाकिस्तान आएंगे। मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि $10 अरब की पेट्रोलियम रिफाइनरी में नई सरमायाकारी होने जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सेनेट कायमा कमेटी ख़ारजा अमूर के इजलास में शिरकत। भारत में मुनक़्क़दा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, SCO इजलास में शिरकत तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की। SCO का बानी मुल्क चीन हमारे लिए बहुत अहम है। 5 अगस्त 2019 के बाद SCO इजलास में शिरकत करना बहुत मुश्किल था। हम अमन चाहते हैं, 2019 के वाक़यात वाला मुल्क ये नहीं चाहता। सिंध काबीना का कराची में 3 बड़े नालों के मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर गौर। 80 मुरब्बा गज के 6500 मकान तामीर होंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के मुताबिक मंसूबे पर 9 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। सिंध हुकूमत 1 बिलियन रुपए मुख्तस कर चुकी। मजीद फंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन वाली रकम जारी करने की इस्तदा की जाएगी।